بچوں کی موجیں لگ گئیں، پڑھائی لکھائی نہ کوئی سر کھپائی۔ بچوں کے لیے بڑی خبر آ گئی، حکومت نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیل ہونے والے طلبہ کو رعایتی 33 نمبر دے کر پاس کیا جائے گا۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پڑھائی لکھائی نہ کوئی سر کھپائی، بچوں کے لیے بڑی خبر آئی۔ حکومت نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیل ہونے والے طلبہ کو رعایتی 33 نمبر دے کر پاس کیا جائے گا۔ نہیں پڑھا میں نے پورا سال، اب کیا ہوگا میرا حال۔ ہر سال اس فکر میں رہنے والے بچوں کی مسلسل دوسرے سال مزے۔ این سی او سی نے فیصلہ کر لیا، 10ویں اور 12ویں میں اس بار بھی کوئی فیل نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم نے ایک بار پھر بچوں پر شفقت کر دی۔ وزیر تعلیم کے زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوئی، جس میں حکومت نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے تمام طلباء کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کورونا صورتحال کے باعث دوبارہ فوری امتحانات ممکن نہیں۔ فیل ہونے والے طلباء کو رعایتی 33 نمبر دے کر پاس کیا جائے گا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سال میں 2 بار ہوں گے۔ امتحانات کو سپلیمنٹری امتحانات کا نام نہیں دیا جائے گا۔ آئندہ سال میٹرک امتحانات مئی جون میں ہوں گے اور نیا سیشن اگست سے شروع ہوگا۔ ابھی آپ کو بریکنگ ڈے کووڈ-19 کے متعلق، جنوبی پنجاب میں کرونا کی چوتھی لہر مزید خطرناک۔ کرونا کے مسیحاؤں پر بھی وار جاری ہے۔ نشتر اسپتال کے سینئر رجسٹرار ڈاکٹر آصف کرونا کے باعث دم توڑ گئے۔ ملتان میں کرونا کے 85، بہاولپور میں 40 افراد کرونا کا شکار، جبکہ بھکر 24، میاں والی 15، ڈیجی خان 12، مظفر گڑھ میں بھی 4 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ سرگودا میں 11، رحیمیہ خان اور راجن پور میں 9 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بہاول نگر، خانیوال، خوشاب اور لودھنا میں 5 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملتان میں کرونا کی مثبت شرح 8% ریکارڈ کی گئی۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی اونچی اڑان کو قابو کرنا ناممکن ہو گیا۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے مہنگا ہو کر 168 روپے 10 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 30 پیسے بڑھ کر 169 روپے ہو گئی، جبکہ 1 تولہ سونا 150 روپے مہنگا ہو کر 1,12,300 کا ہو چکا ہے۔ ڈالر کی اونچی پرواز مسلسل جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 8 پیسے مہنگا ہو کر سال کی بلند سطح 168 روپے 10 پیسے پر پہنچ گیا۔ 4 ماہ میں ڈالر 15 روپے 82 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی اڑان تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ 30 پیسے مہنگا ہو کر ڈالر اس سال کی بلند سطح 169 روپے پر پہنچ گیا۔ ماہرین کے مطابق درآمدات بڑھنے پر روپیہ دباؤ کا شکار ہے، جبکہ ڈالر مہنگا ہونے سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ آج ڈالر تقریباً پچھلے 12-13 ماہ کے بعد ہائیسٹ سطح پہ چلا گیا 169 کے اوپر۔ تو انٹر بینک بھی جو ہے نا آج 168 سے اوپر چلا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری اوپن مارکیٹ بھی بڑھ گئی ہے۔ ڈالر کے ساتھ ساتھ دیگر کرنسیاں بھی ایک سال کی بلند سطح پر جا پہنچیں۔ اوپن مارکیٹ میں برطانوی پاؤنڈ 1 روپے مہنگا ہو کر 234 روپے کا ہو گیا۔ اماراتی درہم 25 پیسے اضافے سے 46 روپے 25 پیسے اور سعودی ریال 25 پیسے مہنگا ہو کر 45 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونا 2 ڈالر مہنگا ہو کر 1,789 ڈالر فی اونس کا ہو گیا۔ مقامی صرافہ بازار میں 1 تولہ سونا 150 روپے مہنگا ہو کر 1,12,300 روپے کا ہو گیا ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر کے سینئر سول ججز کے تبادلے کر دیے۔ 73 سینئر سول ججز کو 16 ستمبر تک نئی تعیناتی کا چارج لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر کے سینئر سول ججز کے تبادلے کر دیے ہیں۔ 73 سینئر سول ججز کو 16 ستمبر تک نئی تعیناتی کا چارج لینے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر کے سینئر سول ججز کے تبادلے کر دیے۔ سینئر سول جج دلدار شاہ گجرانوالہ سے خانیوال تعینات، ثاقب فاروق چنیوٹ سے وہاڑی، راشد طفیل جہلم سے سرگودا، محمد شہباز فیصل آباد سے راجن پور، حسنین عباس کاظمی حافظ آباد سے میاں والی، سینئر سول جج فیاض حسین کو رحیمیہ خان سے صاحبال تعینات کر دیا گیا۔ سینئر سول جج شہباز احمد خانیوال سے گجرانوالہ، شفقت سعید گوندل میاں والی سے لاہور، محمد اسلم خوشاب سے جہلم، شہباز انور وہاڑی سے
शेख पुरा, जफर इकबाल टोबा टेक सिंह से खुशाब, नदीम अब्बास साकिर डीजी खान से अटक, एहसन महमूद सरगोदा से फैसलाबाद, बाबर हुसैन अटक से डीजी खान और आबिद जुबैर को गुजरात से बहावलनगर तैनात कर दिया गया। सीनियर सिविल जज नूर मोहम्मद जेहलम से मुल्तान, शहजाद असलम खुशाब से साहिबाल, मोहम्मद अफजल भट्टी बहावलनगर से बिहाड़ी, हसन अकमल कुरैशी मियांवाली से शेखपुरा, इंतखाब आलम को मुल्तान से रहीम यार खान, खुरम शहजाद को राजनपुर से मुल्तान और सीनियर सिविल जज शफकत शहबाज को चकवाल से मुल्तान तैनात कर दिया गया। सीनियर सिविल जज अब्दुल गफ्फार राजनपुर से जंग, मोहम्मद अमीन राजनपुर से जड़ामाला, मलिक अमानुल्लाह गुजरांवाला से राजनपुर, मुकर्रम हुसैन खानेवाल से राजनपुर, हिदायतुल्लाह शाह बिहाड़ी से मियांवाली, मोहम्मद कजाफी बिन जायर बिहाड़ी से रावलपिंडी, मोहम्मद खालिद यकूब वडाइच नारोवाल से बिहाड़ी, शेख फयाज रहीम यार खान से साहिबाल, नवीद अख्तर मुल्तान से खानेवाल, अनीस अहमद बहावलपुर से चनियोट और सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन मोहम्मद अमीन शहजाद को फैसलाबाद से बहावलपुर तैनात कर दिया गया। तब्दील होने वाले 73 सीनियर सिविल जजेस को 16 सितंबर तक नई तैनाती का चार्ज लेने की हिदायत भी की गई है। रोही की खबर पर एक्शन, शहर की स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने का अमल जारी है। मुल्तान में यूसुफ अदा गिलानी फ्लाईओवर, मुमताज़ाबाद कचहरी और 9 नंबर फ्लाईओवर की लाइट्स की बहाली का काम कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, रोही की खबर पर ये एक्शन लिया गया है। शहर की स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने का अमल जारी है, जबकि मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी फ्लाईओवर, मुमताज़ाबाद कचहरी और 9 नंबर फ्लाईओवर्स की लाइट्स की बहाली का काम शुरू कर लिया गया है। 6 माह से अंधेरे में डूबी शहर ओलिया की शाहराहें रोशन हो गई। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से शहर मुल्तान में बन लाइट्स की बहाली का काम शुरू हो गया। बन लाइट्स की बहाली के काम का आगाज रोही की खबर पर एक्शन लेते हुए कमिश्नर मुल्तान इरशाद करीम के हुक्म पर किया गया। देखें, सबसे पहले यह पूरे पाकिस्तान में तकरीबन अभी स्ट्रीट लाइट का कंसेप्ट ही था। ये क्लस्टर लाइट का कंसेप्ट तकरीबन मुल्तान में पहली दफ़ा जो है ना हम कर रहे हैं। तो स्ट्रीट लाइट जो थी ना वो 100 वाट की होती है। ये हम स्ट्रीट लाइट को किसी चौक में हम यूज़ नहीं कर सकते, तो चौकों को रोशन करने के लिए, फुल चौक को रोशन करने के लिए ये वाला जो है ना क्लस्टर लाइट बहुत मौजू है। पहले फेज में यूसुफ रजा गिलानी फ्लाईओवर, कचहरी फ्लाईओवर, रशीदाबाद, चौक कुम्हारा वाला, मुमताज़ाबाद और 9 नंबर की शाहराहों पर काम मुकम्मल किया गया। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के मुताबिक शहर में अब क्रिस्टल लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनकी लाइफ ज्यादा है। शहरियों ने मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की लाइट्स बहाली के अमल को सराहा। तो अब ये कमिश्नर साहब की काविशों से यहाँ पे पोल लगा है और मुल्तान के बेशतर इलाकों में ऐसे चौकों पर पोल लगे हैं, जिससे स्ट्रीट क्राइम की भी रोकथाम होगी। अच्छी क्वालिटी के इन्होंने फिलिप्स के इसके अंदर बल्ब लगाए हैं। हम कभी कराची या किसी बड़े शहर में जाते थे तो इस तरह के पोल देखते थे। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से लाइट्स की मुरम्मत के साथ साथ शहर के बड़े चौकों पर क्रिस्टल पोल्स भी लगाए जा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से शहर मुल्तान की खराब लाइट्स को ठीक करने का अमल जारी है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का कहना है कि 6 रोज तक शहर मुल्तान की तमाम लाइट्स को बहाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। आगे बढ़ें, आपको बताएं सजादा नशीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को गुस्ल देकर उर्स की तकरीबात का आगाज़ कर दिया है। इस मौके पर कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया। गुस्ल के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई है। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। बरसगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 882वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। सजादा नशीन दरबार मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को गुस्ल दिया। सजादा नशीन दरगाह शाह महमूद कुरैशी ने दरबार पर खुसूसी दुआ भी करवाई। इस महफिल में शामिल नहीं हो सका, बावजूद कोरोना हमें इस महफिल को मुख्तसर और महदूद करना पड़ गया। उन सब का मैं नाम तो नहीं ले सकता। एक तवील मैसेजेस की एक कतार है जो मैंने देखे हैं और बहुत से ऐसे होंगे कि मैं नहीं देख पाया होऊंगा। मेरे मौला जिसने हाथ उठाए हैं उसकी झोलियां भरें। कोरोना के बायस उर्स की तकरीबात को महदूद कर दिया गया। सालाना कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस समेत दीगर तकरीबात नहीं होंगी, जबकि अंदरून और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ये दरगाहें जो हैं ये तो खुलनी चाहिए। ये तो मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत हासिल करने के लिए आए हैं। हमें अंदर जाके बहुत सुकून मिला अल्हम्दुलिल्लाह। हम दूर से आए हुए थे और बहुत बेचैन थे कि हम गौस पाक का दीदार करें। हम अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमें दीदार नसीब हुआ है, बहुत सुकून मिला हमें दिल।
उर्स के मौका पर मुल्तान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स को महदूद ज़रूर किया गया है, लेकिन ज़ायरीन की बड़ी तादाद अकीदत के लिए यहाँ पर आ रही है और ये ज़ायरीन की तादाद ना सिर्फ पूरे मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से भी यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मन्नतें मुरादें आकर मांग रहे हैं। कैमरामैन रिजवान खान के साथ मुस्लिम मुल्तान। ब्रेक के बाद कुछ बात करें महंगाई पर, तो नाज़रीन हांडी को जायकेदार बनाना अब मुश्किल हो गया है। गरम मसाले भी गरीबों की पहुंच से दूर। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग की कीमतों में 600 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। हांडी को जायकेदार बनाना मुश्किल हो गया। गरम मसाला जात भी गरीबों की पहुंच से कोसों दूर हो गए। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग की कीमतों में 600 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। हांडी को खुश जगह बनाना भी मुहाल हो गया। गरम मसाला आवाम की पहुंच से दूर। कीमतों में 300 रुपए से 600 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। बड़ी इलायची 500 रुपए इजाफे के बाद 2000 रुपए फी किलो हो गई। काली मिर्च 300 रुपए इजाफे के बाद 900 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लौंग 600 रुपए इजाफे के बाद 1900 रुपए फी किलो हो गया। छोटी इलायची 400 रुपए इजाफे के बाद 8300 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। जब से डॉलर का इंक्रीज़ हुआ उसके बाद से ये रेट बढ़े हैं, तो इसकी मेन वजह ये है डॉलर का बढ़ना। उसके बाद ये है कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से वहाँ से सप्लाई पहले विदाउट ड्यूटी माल आ जाते थे, जिसकी वजह से रेट थोड़े से मार्केट में लो सेल होते थे। अब जबकि वो बॉर्डर भी सील हो गए हैं और इसलिए अब कस्टम से माल आता है और उसकी वजह से इसके रेट में इजाफा हो गया है। दुकानदार का कहना था कि डॉलर की कीमत और अफगान बॉर्डर पर तजारत की बंदिश के बायस गर्म मसालों की कीमत में इजाफा हुआ। तकरीबन 300 से 400 रुपए किलो हर मसाले में इजाफा हो चुका है, जिसमें बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है। तो बहरहाल ये इसका कुछ डॉलर का बढ़ना है और बाकी बॉर्डर बंद होने की वजह से भी ये रेट इंक्रीज होना इसकी वजह से हुआ है। पेट्रोल, बिजली, गैस, घी, चीनी, आटा, दालों समेत मुख्तलिफ अशिया महंगी हो गई। सफेद पोश तबके के लिए अशिया ज़रूरिया खरीदना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। नाज़रीन, मुल्तान शहर में मुर्गी की ऊंची उड़ान, जबकि अंडा भी 16 रुपए का हो गया है। फी दर्जन कीमत 192 रुपए हो गई है। गुज़श्ता 3 दिन में अंडा 2 रुपए महंगा हुआ है। मुल्तान शहर में मुर्गी के साथ साथ अंडे की कीमत को भी पर लग गए। मार्केट में फी अंडा 16 रुपए जबकि दर्जन 192 रुपए की हो गई। गुज़श्ता 3 दिन में अंडे की कीमत में 2 रुपए इजाफा हुआ, जबकि सरकारी रेट 171 रुपए है। मैं सुबह ले गया हूँ 2 अंडे 30 रुपए ले गया हूँ दुकानदार से। ये हाल है, कहाँ से रोटी कहाँ सवारियाँ में मिलती नहीं, रिक्शे ड्राइवर हैं। गैस इतना महंगा है, परेशानी है बहुत। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी जब तो यानी कि 5-6 रुपये का अंडा था, 10 रुपये का अंडा था, लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई है। जो सही अंडे लेके आते थे 6 लेके आते थे, 12 लेके आते थे, अब 2 या 3 पे गुजारा कर रहे हैं। दुकानदार कहते हैं मुर्गी के अखराजात काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अंडे मजीद महंगे होंगे। हम दे रहे हैं 14 रुपए का, मटेरियल बहुत महंगा है, जिसकी वजह से ये रेट ज्यादा है। मानते हैं कि अभी सर्दी नहीं आई। उसके अलावा तक मक्की, चावल और गंदम ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उसके अलावा तक 14 से 15 आइटमें हैं जो तकरीबन बाहर से आती हैं। शहरियों का कहना था गुज़श्ता हुकूमत में अंडों की कीमत इतनी नहीं बढ़ी। इस हुकूमत ने तो गरीब तबके का जीना ही मुश्किल कर दिया है। शहरियों ने महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। डोजो खान में भी मुर्गी की ऊंची उड़ान है। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर गया, जो कि कीमत 320 रुपए हो चुकी है। आसिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया। सरकारी रेट 305 रुपए है, जबकि मार्केट में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 320 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी सस्ती मुर्गी को तरस गए। रेट लिस्ट के मुताबिक हमें गोश्त नहीं मिल रहा। रेट लिस्ट है वो 305 रुपए, हमें ये 340 रुपए दे रहे हैं और गोश्त वाले भी यही कह रहे हैं कि हमें भी पीछे से महंगा मिल रहा है, इसलिए हमने भी अपना रेट जो है वो ज़्यादा किया हुआ है। दुकानदार भी मुर्गी की कीमतें बढ़ने पर परेशान हैं। कहते हैं जिस रेट से इन्हें मुर्गी सप्लाई की जाती है वो इस हिसाब से गोश्त फरोख्त करते हैं, जबकि सरकारी रेट कम है। 305 रुपये में घर पड़ता है, 1.5 किलो में से 1 किलो निकलता है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जहाँ पे हमारा बिकता था 150 किलो, वहाँ पे हम 50 किलो बेच रहे हैं। इतनी महंगाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डीलर जो हमारे को माल दे रहे हैं ना, वो 20-20 रुपए किलो रख रहे हैं, उसको कुछ नहीं कहते। फट्टे वाला जो है ना 10 किलो या 20 किलो बेचा, रोज बस रेट आ जाता है, आओ भी जुर्माना दे, ये कर वो कर। आप उसकी सप्लाई देखो और गवर्नमेंट का रेट देखो।
अब क्या करें, गरीब आदमी है, खुद हम तो 7-8 लाख के करते ही हो गए इसी काम में। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे और कीमतें कम करवाए। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 1100 रोज में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। चीनी औसतन 51 रुपए 52 पैसे फी किलो, जबकि आटे का 20 किलो का थैला औसतन 450 रुपए 87 पैसे महंगा हो गया है। घी की फी किलो कीमत 150 से बढ़कर 343 रुपए हो गई, जबकि बिजली चार्जेस भी 2 रुपए से बढ़कर 5 रुपए 95 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1100 रोज में खाने पीने की अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की दस्तावेजात के मुताबिक चीनी औसतन 51 रुपए 52 पैसे फी किलो महंगी हुई। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55 रुपए 59 पैसे फी किलो थी। अब चीनी की औसत कीमत 107 रुपए 11 पैसे फी किलो तक जा पहुंची है। आटे का 20 किलो का थैला भी औसतन 450 रुपए 87 पैसे महंगा हुआ है। अगस्त 2018 में 20 किलो आटे का थैला 771 रुपए 20 पैसे का था। अब उसकी औसतन कीमत 1222 रुपए 7 पैसे हो चुकी है। हुकूमत के 1100 रोज में घी की औसतन कीमत में 192 रुपए 47 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। आजकल घी की फी किलो कीमत 150 रुपए 19 पैसे से बढ़कर 342 रुपए 66 पैसे हो चुकी है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी भी औसतन 91 रुपए 66 पैसे फी किलो महंगी हुई। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 122 रुपए 81 पैसे से बढ़कर 214 रुपए 47 पैसे हो गई है। हुकूमत के 1100 रोज में दाल माश 106 रुपए 73 पैसे, दाल मसूर 69 रुपए 47 पैसे, दाल मूंग 66 रुपए 6 पैसे, दाल चना 35 रुपए 4 पैसे फी किलो महंगी हुई है। छोटा गोश्त औसतन 342 रुपए 81 पैसे, बड़ा गोश्त 179 रुपए 56 पैसे और ताज़ा दूध 26 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। पीटीआई की हुकूमत में दही 27 रुपए 60 पैसे, लहसुन 150 रुपए 86 पैसे, गुड़ 56 रुपए 80 पैसे और प्याज 21 रुपए 5 पैसे फी किलो महंगा हुआ। अंडे औसतन 74 रुपए 23 पैसे फी दर्जन महंगे हुए, जबकि फी यूनिट बिजली चार्जेस 2 रुपए से बढ़कर 5.95 रुपए हो गए। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर भी 372 रुपए 96 पैसे महंगा हुआ। उधर खानेवाल में आटे का बहरान, मर्दों और खवातीनों की लंबी लंबी कतारें, धक्कम फेल करते शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी। नदीम मुगल की रिपोर्ट। खानेवाल में आटे के हसूल के लिए लंबी लंबी कतारें लग गईं। शहरी कहते हैं हुकूमती नाहली के बायस आटे का बहरान जारी है। हाथों में पैसे लिए घंटों कतारों में खड़े रहते हैं। लाइनें इतनी लंबी हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, 4 स्टॉल लगे, लेकिन 4 स्टॉलों में कम से कम 4 आदमी, इतनी लाइनें तो ना लगे। 2 घंटे हो गया मैं आए, अभी तक कुछ भी नहीं है। गर्मी देखो कितनी है, बुरा हाल है, मजदूरी करने वाले हैं। आटे के हसूल के लिए मर्दों के मुकाबले में खवातीन की तादाद भी कम न थी। खवातीन एक दूसरे को धक्कम पेल करती हुकूमत पर बरस पड़ी। सवेरे से खड़ी, मेरे से खड़ा न रह, आप शुगर की बीमार हो, बताइए क्या बनेगा। लाइन में खड़े हैं, पीछे से औरतें आ रही हैं, उनको दी जा रहे, जो आगे से आके ले लेती हैं, कोई वाकफियत वाली उनको भी दे देते हैं। हम लाइन में खड़े हैं भूखे, घर जाके रोटी नहीं बनानी, नाश्ता नहीं बना, फारग है हम। शहरियों का कहना था कि इतनी बड़ी आबादी के लिए आटे का सिर्फ एक स्टॉल न काफी है, स्टॉल बढ़ाए जाएं। दूसरी जानिब एक दूसरे के साथ खड़े शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां बखेर दी। जहां खवातीन की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, वहीं भी मर्द हजरात धूप में खड़े आटे के हसूल के लिए। उनका कहना है कि हाथों में पैसे लिए घूम रहे हैं, लेकिन हुकूमती पॉलिसी के बायस मुश्किलात का सामना हो रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोई न्यूज़, खानेवाल। मुजफ्फरगढ़ में सस्ते आटे का हसूल मुश्किल हो गया है। सहूलत बाजारों में आटा नायाब है। 10 किलो का थैला 430 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सस्ते आटे के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इंतजामिया और शहरियों के दरमियान तल्ख कलामी भी मामूल बन गई है। शहरियों ने आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि मुजफ्फरगढ़ के सस्ते बाजारों में आटा नायाब। आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें लग गई। शहरियों का कहना था कि घंटों लंबी लाइन में लगना पड़ता है, जबकि आटे का 10 किलो का थैला 430 रुपए में मिल रहा है। कई बार दरख्वास्त दी, मगर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। खवातीन को भी आटे के लिए मुश्किलात का सामना है। बात करें ताजरों की, तो नाज़रीन, मुल्तान में चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के ताजिर सड़कों पर निकल आए। दुकानों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करने के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर सेल टैक्स नामंजूर करने के नारे भी लगाए हैं। माजिद कलासरा की रिपोर्ट देखिए।
छोटे ताजुरों ने 1000 मुरब्बा फुट की दुकान को सेल टैक्स में रजिस्टर करने और पॉइंट ऑफ सेल की जबरी मशीन नस्ब करने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन की क़यादत चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक और चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एहतशाम उल हक ने की। ख्वाजा शफीक का कहना था कि 1000 मुरब्बा फुट की दुकानों पर सेल टैक्स की किसी सूरत कबूल नहीं। किसी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन वाले आदमी को अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर आता है, अपनी मार्केटों में नहीं घुसने देंगे। आप तगड़े हों, मैदान में खड़े हों। मुजाहिरीन की कसीर तादाद ने प्ले कार्ड उठाकर सेल टैक्स नामंजूर के नारे लगाए। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एहतशाम उल हक का कहना था कि ताजरों को सेल टैक्स में रजिस्टर इंडस्ट्री के एट सोर्स सेल टैक्स वसूल किया जाता है, इंपोर्टर एट सोर्स टैक्स वसूल करते हैं, इसलिए हम टैक्स वहां पर दे देते हैं। हम अपनी दुकानों पे किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगने देते। ताजरों का मजीद कहना था कि हुकूमत टैक्सों की नाजायज वसूली ना करे, अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। FBR की जानिब से सेल टैक्स में इजाफे पर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के ताज सरापा एहतजाज है। हुकूमत से मुतालबा करें इस सेल टैक्स को फिल फॉर वापस लिया जाए, नहीं तो मजीद एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। उधर रहीमिया खान में ताजरों ने प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स में 300 गुना इजाफा मुस्तरद कर दिया। ज़िले सदर अंजुमन ताजरान अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने का वादा किया, मगर आवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ गया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की जानिब से प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स में 300% इजाफा कर दिया गया। कमर्शियल और घरेलू दोनों प्रॉपर्टीज के टैक्स में इजाफा किया गया। अंजुमन ताजरान की जानिब से टैक्स के इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया। ज़िला सदर अंजुमन ताजरान रहीम खान अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना है कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के वादे किए, मगर उसके बरक्स अमल हो रहा है। अशियाए ज़रूरियाँ महंगी हो रही हैं, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है और टैक्सेस भी बढ़ाए जा रहे हैं। अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना था कि पंजाब के अलावा किसी भी सूबे में टैक्सेस का इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे और बढ़ाए गए टैक्सेस के फैसले को वापस ले। मुल्तान में गटरों के खुले मैनहोल्स की सुनी गई है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद ने वासा को गटरों के टूटे ढक्कन तब्दील करने के लिए 48 घंटों की डेडलाइन दे दी। हादसे की सूरत में मुतल्लिका ऑफिसर पर मुकदमा दर्ज कराने की वार्निंग जारी कर दी गई। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की जेर सदारत वासा की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने वासा को गटरों के टूटे ढक्कन तब्दील करने के लिए 48 घंटों की डेडलाइन दे दी। उन्होंने वासा अफसरों को कहा कि हादसे की सूरत में मुतालिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि वासा सीवरेज लाइन्स में किसी एक मुकाम पर गैस के अखराज के लिए जाली नुमा ढक्कन लगाए। उधर मुल्तान सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एनजीओज में फंड्स तकसीम करने का ऐलान। सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड एनजीओज को फलाही कामों की मद में 1 लाख से 5 लाख रुपए के फंड्स फ्राहम किए जाएंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एनजीओज में फंड्स तकसीम करने का ऐलान कर दिया गया। फलाही कामों की मद में एनजीओज को फंड्स दिए जाएंगे। सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड एनजीओज को फंड्स देने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल की जानिब से फंड्स फ्राहम करने का ऐलान किया गया। एनजीओज को फलाही कामों की मद में 1 लाख से 5 लाख रुपए के फंड्स फ्राहम किए जाएंगे। महकमा एजुकेशन का अहम इकदाम। सरकारी स्कूलों में 50,000 से ज्यादा बच्चों को वापस लाने का टारगेट। दाखिलों के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। हमें रिपोर्ट कर रही हैं अलिशा। स्कूलों में 50,000 से ज़ायद बच्चों को वापस लाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट मुत्तहिद। तमाम स्कूलों में दाखिलों के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गईं। स्कूलों में छुट्टियों के बावजूद दाखिला मुहिम जारी है। मैं यहाँ पर दाखिला लेने आया हूँ 9th क्लास में और टीचर भी मौजूद हैं और आसानी से मेरा दाखिला भी हो गया है। स्कूलों में छुट्टियों के बावजूद दाखिला टीम मौजूद है। टीम सरबराह मोहम्मद अली का कहना था कि सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक दाखिला करने वाली टीमें यहां मौजूद होती हैं। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी जारी है। हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक स्कूलों में दाखिला मुहिम जो है वो जारी है। छुट्टियों के बावजूद ख़ास तौर पर 9th क्लास की जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए हम रोज़ाना स्कूल आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी जो है वो काफ़ी दाखिल हो रहे हैं डेली बुनियाद के ऊपर। हमारा जो टारगेट है इंशाल्लाह हम उसको अचीव ज़रूर कर लेंगे। स्कूल में दाखिले के लिए आए बच्चों का कहना था कि छुट्टियों में भी दाखिला हो रहा है और मुफ्त किताबें फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान।
मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में बड़ा एजाज शोबा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फकार अली को बेहतरीन यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड दे दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फकार अली को यूनिवर्सिटी के 34 असातिज़ा में से बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड दिया गया। शोबा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फकार अली को बेहतरीन यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड मिलने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फकार अली को साथी असातिज़ा की जानिब से मुबारकबाद भी दी गई। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान में कपास की चुनाई के दूसरे मरहले का आगाज रवां साल फी एकड़ पैदावार 6 से 12 मन है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि काश्तकार मौसमी हालात के पेश नज़र दूसरी चुनाई जल्दी मुकम्मल कर लें। अली लियास की रिपोर्ट। सीनियर साइंटिस्ट CRI मोहम्मद इकबाल का कहना था कि मुल्तान में कपास की चिनाई का दूसरा मरहला शुरू हो गया। जनूबी पंजाब के काश्तकार हालात के पेश नज़र कपास की दूसरी चिनाई मुकम्मल कर लें। पहली और दूसरी चिनाई में 15 से 20 दिन का वक्फा रखा जाए। रवां साल फी एकड़ पैदावार 6 से 12 मन हासिल हो रही है। एक से दूसरी चिनाई का वक्फे का ताल्लुक है तो वो ये कराब की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने टिंडे खुले हुए हैं। कम से कम 15 से 20 टिंडे खुले हों तो फिर चुनाई करनी चाहिए। तो उसके लिए नॉर्मल रूटीन में अगर अच्छी फ्रूटिंग है, अच्छा फल है, तो वो एक से दूसरी चुनाई तक 15 से 20 दिन के वक्फे से दूसरी चुनाई तैयार हो जाती है। सीनियर साइंटिस्ट CRI ने रोही को बताया कि अगर खेत में टिंडे तैयार हों तो फौरी चुनाई की जाए। रात में दर्जा हरारत कम होने से फल बनने का अमल भी तेज हो गया है। इस वक्त टेम्परेचर भी रात का काफ़ी कम हो गया है। जो फ्रूट सेटिंग है, जो टिंडे बनने की फी पौधा तादाद है, वो भी पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा है। टिंडे का वजन भी ज़्यादा है और फी पौधा टिंडों की तादाद भी ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक रवां साल कपास का मेयार पहले से काफी बेहतर है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। महकमा शुमारियात के ज़रिए तमाम तरक्याती महकमों के अफसरान का तरबीती सेमिनार हुआ। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद और कौमी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं गौहर रहमान। के बजट का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। महकमा शुमारियात ने अवामी मसाइल पर मबनी स्कीमों की निशानदेही बारे सर्वे मुकम्मल कर लिया। इस हवाले से जिले कौंसल हाल में सेमिनार का इनकाद किया गया। हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इसलिए है, हम इनको यहाँ पे प्रॉपर वर्क कराएंगे, बिठा के उनको बताएंगे आपने कौन कौन से प्रोसेस को लेके चलना है, जिसके जरिए आप बेहतर पॉलिसी प्लानिंग कर सकते हैं। सेमिनार में जनूबी पंजाब के ADP प्लान और तरक्याती गोल्स का जायजा लिया गया। इदारे शुमारियात के अफसरान का कहना था कि 54,000 घरों में जाकर 211 इंडिकेटर्स पर डाटा इकट्ठा किया गया है। इसमें हमने जिक्र किया कि 54,000 हाउस होल्ड्स का डाटा कलेक्ट हुआ है और 211 इंडिकेटर्स का डाटा यहाँ पे हमने कलेक्ट किया है। इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि मुल्तान डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं, सोशल सेक्टर्स जैसा एजुकेशन, हेल्थ, वाश, हम इन लोगों को बता सकें कि इस डाटा की अहमियत क्या है और इस डाटा को इस्तेमाल कैसे करना है और इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पॉलिसी मेकिंग और अपनी प्लानिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सेमिनार में डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी, डिप्टी डायरेक्टर महकमा शुमारियात मोहम्मद हसनैन हैदर, कौमी तरक्की के महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गौहर रहमान, मुल्तान।